My greetings to you all in the precious name of our Lord and Savior Jesus Christ once again. और मैं परमेश्वर जो यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है उसके नाम से मैं आप सभी को जय क्रिस्त जय यीशु बोलता हूँ। और ये वक्त है कि हम अपने स्क्रिप्चर पोर्शन में जाएंगे। हम लोग वचन में से आज एक छोटी सी शेयरिंग हम देखेंगे जो कि मैंने लिया है डिट्रोनॉमी उसका 32 चैप्टर 1 से लेकर 7 वचन, जिसको हिंदी में कहते हैं व्यवस्था विवरण, उसका 32वां अध्याय 1 से लेकर 7। Today's scripture portion has been taken from the book of Deuteronomy chapter 32 verses beginning from 1 to 7. First of all, I will read in English and then I will read in Hindi. In English, it is written, and I am reading from today's English version. Then Moses recited the entire song while all the people of Israel listened. Earth and sky, hear my words. Listen closely to what I say. My teaching will fall like drops of rain and form on the earth like dew. My words will fall like showers on young plants, like gentle rain on tender grass. I will praise the name of the Lord, and his people will tell of his greatness. The Lord is your mighty defender, perfect and just in all his ways. Your God is faithful and true. He does what is right and fair. But you are unfaithful, unworthy to be his people, a sinful and deceitful nation. Is this the way you should treat the Lord, you foolish, senseless people? He is your father, your creator. He made you into a nation. Think of the past, of the time long ago. Ask your fathers to tell you what happened. Ask the old man to tell of the past. The Most High assigned nations their hands. He determined where people should live. He assigned to each nation a God. In Hindi version, it is written, तब मूसा ने इज़राइल की सारी सभा को इस गीत के वचन आदि से अंत तक कह सुनाए। हे आकाश, कान लगा कि मैं बोलूं, और हे पृथ्वी, मेरे मुंह की बातें सुन। मेरा उपदेश मेघ के समान बरसेगा और मेरी बातें ओस के समान टपकेगी, जैसे कि हरी घास पर झींसी और पौधों पर झाड़ियां। मैं तो यहोवा का नाम का प्रचार करूंगा। तुम अपने परमेश्वर की महिमा को मानो। वह चट्टान है, उसका काम खरा है और उसकी सारी गति न्याय की है। वह सच्चा ईश्वर है, उसमें कुटिलता नहीं। वह धर्मी और सीधा है। परंतु इसी जाति के लोग टेढ़े और तिरछे हैं, वे बिगड़ गए हैं। ये उसके पुत्र नहीं, ये उनका कलंक है। हे मूढ़ और निर्बुद्धि लोगों, क्या तुम यहोवा को ये बदला देते हो? क्या वह तेरा पिता नहीं जिसने तुझको मोल लिया है? उसने तुझको बनाया और स्थिर भी किया है। प्राचीन काल के दिनों को स्मरण करो, पीढ़ी से पीढ़ी के वर्षों को विचारो। अपने बाप से पूछो और वो तुमको बताएगा। अपने वृद्ध लोगों से प्रश्न करो और वे तुझसे कह देंगे। परमेश्वर आज के इस कलाम के पढ़ने पर आशीष दे। आमीन। एक छोटी सी हम प्रार्थना करेंगे और वचन के समझने के लिए हम सामर्थ्य मांगेंगे। धन्य सर्वशक्तिमान, एक बार फिर धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए जो आपने दिया। पिता, जब आपका दास ये वचन को पिता शेयर करने जाता है, मैं नहीं बल्कि आप ही कुदूस मेरे द्वारा बात करने वाला हो। और पिता, जो कुछ आज हम सीखते हैं, समझते हैं, उसको हम अपने जीवनों में पिता लागू करने वाले हों, जिससे आपके नाम को महिमा मिले। और आज का वचन खाली न जाए पिता, बल्कि पिता 100 गुना फल आपके राज्य में लाने वाला हो सके। धन्यवाद यीशु, आपने प्रार्थना को सुना। इस प्रार्थना को आपके इकलौते बेटे हमारे उद्धार करता यीशु मसीह के मधुर मुबारक नाम में मांगते हैं। आमीन। My friends, as we all know that a very crucial time is going on, where we are house arrested for our safety. Our government took the good initiative to break the coronavirus by lock down everything. As I am in my house, I would like to share some thoughts on the scripture portion which has been taken from the Deuteronomy chapter 32 verses beginning from 1 to 7. When I was lying down in my bed,
and was reading my Bible, this particular verse drew my attention toward the old days. And I was lost by remembering my old days of my life. The memorable events make the history, and lots of memorable things I remembered during this lockdown, or you can say house arrest. When we watch the news and television, we hear about only that virus lockdown, beating crowds, fear, pedestrian journey of the labor class, and economics gone down of the world, etc., etc. But apart from this, we have heard about the repentance of some of the major countries. Why did they do so? Because they remembered their days of old, about their forefather or ancestors' transgressions, sins, afflictions. Now they are remembering parousia, in which Jesus the second coming, that Jesus is coming soon, and days are near, etc. and etc. But still, it did not come. We are still waiting for parousia. We are still waiting for Jesus the second coming into this world. And as a Christian community, not as a Christian community, but as a people of faith, that we would like to enter in our destination, which is God's kingdom. Now, why these things happened into the life of the people? First question is that the very first assumption could be covet, or maybe desires of the heart to get power. Opposing and denying God's power, challenging God's reality, accusation of God, each and everything comes under this such umbrella. But today's sharing will bring something new in our lives, and I hope that today's sharing you will have a thought on it. Remember the days of old. जब हम देखते हैं मेरे अजीजों कि हमारे चारों ओर, जब हम टेलीविजन को देखते हैं, न्यूज़ को देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आ रही है। हम ये भी देखते हैं कि क्या क्या हो रहा है, हैं? जो लेबर क्लास है वो जर्नी को कर रही है, हैं? हमारी जो इकोनॉमी, जो वर्ल्ड की इकोनॉमिक है वो ख़त्म हो चुकी है, और हम देखते हैं पुलिस जो है वो लोगों को मार रही है, और देख रहे हैं कोरोना वायरस के लोग बढ़ते जा रहे हैं, उससे अफेक्टेड लोग बढ़ते जा रहे हैं। इटली का हम देखते हैं, इटली में इतने सारे लोग हुए, और अभी जब फेसबुक पे जब देखा गया तो एक प्रधानमंत्री, उनके जो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर है, उनका एक स्टेटमेंट आया कि हमारी कंट्री को सिर्फ खुदा ही बचा सकता है। एंड नाउ दे आर रिपेंटिंग बिफोर गॉड, दे आर रिमेम्बरिंग देयर ओल्ड डेज, देयर फादर, देयर फोरफादर्स sin and transgressions, and that's why they are repenting before God. इसलिए वो परमेश्वर के उस अनुग्रह को वो देखते हैं, वो ये देखते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे बाप दादाओं पर क्या था, मगर बाप दादाओं ने उनकी कदर को नहीं कदराना, और वो सारे काम किए जो कि परमेश्वर की दृष्टि में ग्रहण योग्य नहीं थे, और इसलिए वो रिपेंट कर रहे हैं। बहुत ही एक अच्छी न्यूज़ ये लगी। और जब हम आज के इस विचार को देखेंगे, आज के इस विचार को जब हम सुनेंगे, पढ़ेंगे, तो एक नया इंसाइट हमारे जीवन में आएगा, और हम इस चीज़ को देखेंगे कि क्या है उन पुराने दिनों को याद करना, जबकि हम इस लॉकडाउन के इस सेशन के अंदर हैं, इस समय के अंदर हैं, मोमेंट के अंदर हैं, और हम अपने घरों के अंदर बंद हैं। हो सकता है हम प्रार्थनाएं अपने परिवारों के साथ कर रहे हों, हो सकता है ये एक अपॉर्चुनिटी हमारे लिए हो कि हम अपने टाइम को अपने परिवारों के साथ बिता रहे हैं, मगर सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी ये है कि बावजूद इसके कि हम परमेश्वर के साथ अपने समय को बिता रहे हैं। 5 मिनट नहीं, 2 मिनट नहीं, 3 मिनट नहीं, बल्कि पूरा पूरा दिन हम परमेश्वर के साथ बिता रहे हैं। ये एक मनभावनी बात है। रिमेम्बरिंग द ओल्ड डेज, अपने पुराने दिनों को याद कीजिए, परमेश्वर की उन भलाइयों को याद कीजिए। और जब हम इस डिटरनॉमी का, इस व्यवस्था विवरण का जब बैकग्राउंड देखते हैं, द बुक ऑफ डिटरनॉमी इज कंप्राइज्ड ऑफ 3 farewell sermon of Moses.
preached after the completion of the 40 years wilderness journey before his impending death. और यहाँ पर तीन जो sermons हैं, जो messages हैं मूसा के, वो हम देखते हैं उसकी मृत्यु से पहले। और ये उस वक्त की बात है जब उन्होंने अपने 40 वर्ष की उस विल्डरनेस जर्नी को पूरा किया। At the end of his remarkable 120 years of life, Moses proclaimed the three sermons or speeches to the Israelites with a great and deep concern. और बहुत ही अच्छी बात है कि यहाँ पर जो मूसा है, वो मूसा जो परमेश्वर का दास था, वो बहुत ही गहराई के साथ, बहुत ही बोझ के साथ और बहुत ही एक गहरे कंसर्न के साथ वो इन तीन सरमन्स को वो दे रहा है इजरायलियों को, परमेश्वर के लोगों को। पहला जो चीज है, द रिकलेक्शन ऑफ गॉड्स पास्ट salvific work or the work of deliverance, which is found in Deuteronomy chapter 1 verses beginning from 1 to 4 and 43. My friends, जो पहला जो रिमेम्बरिंग द ओल्ड डेज, जो पहला सरमन है, वो ये बता रहा है कि परमेश्वर के उन दिनों को याद करो जब परमेश्वर ने तुम लोगों को उस स्लेवरी में से, उस दासत्व में से जो मिस्रियों के अंडर के अंदर थे, वहां से तुम्हें निकाला। फिर दूसरा है द रिटेलिएशन ऑफ द लॉ, और यहाँ पर डिटोनॉमी चैप्टर 4 एंड वर्सेस 44 टू चैप्टर 26 वर्स 19, और यहाँ पर रिटेलिएशन ऑफ द लॉ जिसमें ये लिखता है, अगर हम देखें रिटेलिएशन ऑफ द लॉ कि यहाँ पर वो उस नियम, उस कानून को बता रहा है, उस व्यवस्था को बता रहा है जो कि परमेश्वर ने उनको दिया, जिससे तुम फॉलो करोगे तो तुम क्या है, परमेश्वर के सामने जीवित ठहरोगे और उसकी राह पर चलोगे। एंड तीसरा जो सरमन हमें पाया जाता है डिटोनॉमी 27 till 30 चैप्टर के अंदर, द फ्यूचर फोरटोल्ड व्हिच मींस रिस्टोरेशन और गॉड्स बाउंटी वर्क फॉर इजराइल। और ये एक सबसे मुख्य पार्ट ये था कि यहाँ पर जो मूसा है फ्यूचर के बारे में बता रहा है, और बता रहा है कि परमेश्वर ने कैसे बड़े कामों के द्वारा उस फ्यूचर को सिक्योर कर रखा है, उस फ्यूचर को रिस्टोर करने जा रहा है। बहुत ही एक अच्छा गीत यहाँ पर हमें देखने को मिलता है मूसा का। Now, Deuteronomy chapter 32, that is the Moses' song which addressed the somber subject of Israel's betrayal, fall and God's subsequent judgment. और यहाँ पर जो मूसा का जो वचन है 32वां, ये एक गीत है। जो चैप्टर जो 32 है, ये एक मूसा का गीत है जो कि परमेश्वर के जजमेंट के बारे में बता रहा है। क्यों? क्योंकि इजराइल को वो बिट्रेयल को यानी धोखा देने को बता रहा है, उसके गिर जाने को बता रहा है, और परमेश्वर के उस न्याय को बता रहा है जो परमेश्वर का न्याय उनके ऊपर आता है। In Deuteronomy chapter 32 and verse 7, Moses expressed great concern for the dismal events that might unfold after the Israelites enter and settle in the land of Canaan. In this chapter, Moses gave the three specific commands. अब यहाँ देखते हैं कि जो मूसा के 3 specific commands यहाँ पर इजराइलियों को हैं इस चैप्टर के अंदर। Remember the days of old, the very first command. The second command, consider the years of all generation. And the third command is, ask your father and elders and they will tell you. वचन 7, प्राचीन काल के दिनों को स्मरण करो, पीढ़ी के वर्षों को विचारो और बाप से पूछो और वह तुमको बताएगा। अपने वृद्धों लोगों से प्रश्न करो और वे तुझसे कह देंगे। This was surely the demonstration of steadfast God's love to his chosen people. Let us move on to remember the days of old. For me, it is the journey of faith has been started in our lives. ये मेरे लिए एक विषय है, ये मेरे लिए एक जो फेथ है, जो हमारा विश्वास की एक जर्नी है, जो कि हमारे जीवन में शुरू हो चुकी है अजीजों। The journey towards the kingdom of God and the spiritual Canaan. ये एक ऐसी एक यात्रा है हमारे
एक विश्वास की जो कि हमें परमेश्वर के राज्य के अंदर लेके जाती है, या फिर ये एक स्पिरिचुअल, एक एक आत्मिक, एक कनान देश है, उसकी ओर लेके जाती है जो परमेश्वर ने हमसे वायदा कर रखा है। कनान से मतलब ये नहीं कि हमें कनान देश में ही जाना है, अगर मतलब ये है परमेश्वर की उस आशीषों का वायदा जो परमेश्वर ने अपने साथ रख छोड़ा है अपने लोगों के लिए। मगर कंडीशन है, डू वी हैव फेथ ऑन गॉड? क्या परमेश्वर पर हमारा विश्वास है या परमेश्वर पर हम विश्वास करते हैं? This is the wilderness journey for all of us, where in our rooms we remember the powerful demonstrations of God's fervent love to us. और ये एक जर्नी हमारी स्टार्ट हो चुकी है जबकि हम अपने रूम के अंदर बंद हैं और हम उन दिनों को याद कर रहे हैं जो परमेश्वर के उस सामर्थ को, उस सामर्थी प्यार को हमने हमारे लिए देखा। You would say that people are dying and suffering from the disease. Where is the God's love? Where is God? Did he close his eyes from all happenings? Why he is not listening the prayers of the people, those who are indulged with, etc., etc. आप ये कहेंगे कि क्या परमेश्वर ने अपनी आंखों को बंद कर लिया है? क्या परमेश्वर का कैसा प्यार है कि लोग मर रहे हैं, लोग चीख रहे हैं, कर्रा रहे हैं, और परमेश्वर जो चारों तरफ जो दुआएं की जा रही हैं उनको परमेश्वर नहीं सुन रहा? But here just take a moment and think the reason behind it. आप जरा ठहरिए और सोचिए कि इसके पीछे क्या कारण है। God did not bring this disease, my friend. First of all, I would like to clear this thing. परमेश्वर इस बीमारी को, इस महामारी को लेकर नहीं आया। अगर ये हमारे दिमाग में विचार है तो इस चीज को हटा दीजिए। This is human made virus. पहली बात, जो कोरोना वायरस है वो मनुष्य के द्वारा बनाया गया, और जब मनुष्य इस वायरस को बना रहे थे उन्होंने परमेश्वर से नहीं पूछा कि परमेश्वर क्या हम इस वायरस को बनाएं? उसके पीछे क्या कारण था जो इस वायरस को बनाया गया? कुछ भी चीज का जब हम आविष्कार करते हैं या कुछ भी चीज को जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई पर्पस होता है, कोई ना कोई उद्देश्य होता है। इसके पीछे क्या उद्देश्य था, क्या चीज थी कि क्यों इस वायरस को बनाया गया? हमें नहीं पता, मगर हो सकता है ये मनुष्य को लालच हो सकता है ये मनुष्य को एक ऐसे एक कगार पर खड़ा कर दे कि जिसमें मनुष्य चाहे कि अपने सेल्फ एक्सॉल्टेशन, कि हम खुद को ऊपर उठाएं। कुछ भी इसके पीछे कारण हो सकता है, हमें नहीं पता। मगर आज रियलिटी ये है कि वी ऑल आर फेसिंग द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दिस डिजायर्स ऑफ द हार्ट ऑफ द ह्यूमन बीइंग। हम उस चीजों को, परिस्थिति को सब के सब इकट्ठा होकर झेल रहे हैं जो कि मनुष्य के द्वारा उसके डिजायर को फुलफिल करने के द्वारा ये बनाया गया। हाँ अजीजों, we all are facing. Now we all are praying, and I'm definitely sure that God has already heard our prayer, but it will take time because nothing is impossible with God. परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, ये समय को लेगा, मगर यकीन मानिए परमेश्वर ने हमारी प्रार्थनाओं को सुन लिया है। चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, वो सब अगर दुआएं कर रहे हैं तो परमेश्वर दुआओं को सुन रहा है, क्योंकि इंटेंशन एक है कि गॉड सेव ऑल ऑफ अस। परमेश्वर तू हम सबको बचा, हम सबको तू सेव कर, हम सबको प्रोटेक्ट कर। और हम अपने लिए भी प्रार्थना कर तो रहे हैं, मगर साथ में हम उन लोगों के लिए भी कर रहे हैं जो लोग हैं इससे पीड़ित हैं, जो हॉस्पिटल में एडमिट हैं, उनके लिए भी प्रार्थनाएं की जा रही है। It doesn't mean that God works late, no, but He works according to the time, so we need to have faith in Him. And really, I'm telling you, God wants our faith in Him. इसका मतलब ये नहीं परमेश्वर देर से काम करता है, नहीं, परमेश्वर चाहता है कि इस लंबी घड़ी के अंदर हमें परमेश्वर विश्वास करना है, ताकि
वो अपने कार्यों को हमारे जीवन में करे। In this portion, the Hebrew term is used for the days of old is Yemoth Olam. हिब्रूज के अंदर इसका जो मेन जो वर्ड है उसका मतलब है येमोथ ओलाम. It is not simply referred to the history, but it talks about the fulfillment of God's salvific work and His promise into the life of the people. Deuteronomy chapter 4 and verse 32. और यहाँ पे सिंपल मीन नहीं है जो कि हिस्ट्री को ये रिमेम्बर द ओल्ड डेज बताता है, नहीं. अपने पुराने दिनों को याद करने का मतलब ये है कि परमेश्वर के उस जो बचाव का जो काम है उसका पूरा होना जीवन के अंदर कैसा है, उसकी जो प्रॉमिसेस हैं, उसकी जो वाचाएं हमसे बांधी गई हैं, वो किस प्रकार हमारे जीवन में फुलफिल होंगी, हो रही हैं और हो चुकी हैं. The days of old encompasses a comprehensive juncture, which means the entire period of time, which includes God's salvific work has been in progress. और यहाँ पर जब हम देखते हैं एक बहुत ही एक समझ तरीके से एक ज्ञान तरीके से हम अगर इस चीज को देखें तो ये एक पूरा एक जंक्चर ऑफ टाइम है, द टाइम पीरियड है जिसमें परमेश्वर का जो बचाव का जो काम है वो क्या है, प्रोग्रेस के अंदर है, क्योंकि परमेश्वर अपने कार्य को करने पर है. The original meaning of it is long duration, antiquity, eternity and everlastingness, which traces back to the ancient historical events. और यहाँ पर जब एंड ऑफ डेज की जब रिमेम्बर ऑफ ओल्ड डेज की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर मूसा अपने लोगों को बता रहा है उन दिनों को याद करो जब अदने बाग में जब आदम और हवा अपने पाप करने के कारण गिर गए थे, और जब केन ने अपने लालच के कारण अपने भाई हाबिल को मौत की घाट उतार दिया था, मार दिया था, और उसके जो कार्य थे काफी फेथलेस थे और जिसमें कोई भी विश्वास नहीं था. एंड फिर हम उन दिनों को याद करने के लिए बोल रहा हूँ, दोनों को याद करो इजरायलियों, जब नूह के समय में जब पाप इस संसार में बढ़ गया था और क्या कहते हैं, परमेश्वर ने सृष्टि को जो थी उसको कैसे नाश किया पानी और जल बरसाकर. और फिर वो ये कह रहा है कि उन दिनों को भी याद करो जब लोग आपस में इकट्ठा होकर ये सोच रहे थे कि हम परमेश्वर के तुल्य हैं, परमेश्वर अपनी जगह पर है और इस संसार के अंदर हम परमेश्वर के समान हैं. तो उन्होंने टावर ऑफ बाबेल को बनाना शुरू किया, और उस टावर ऑफ बाबेल को जब बनाना शुरू किया तब परमेश्वर ने क्या किया, उनको तितर बितर किया. फिर अब्राहमिक कवनेंट को जो कि पाया जाता है जेनेसिस चैप्टर 15 के अंदर, जब परमेश्वर ने उस अब्राहम के साथ वाचा बांधी कि मैं तेरे वंश को आगे तक बढ़ाऊंगा, आगे तक लेके जाऊंगा, उस वाचाओं को तुम याद रखो. फिर यहाँ पर देखने को मिलता है उस दिनों को जब इजरायली कौम 430 वर्ष तक स्लेवरी के अंदर थी. उन दिनों को याद रखो कि किस तरीके से तुम लोगों ने दुख को उठाया, किस तरीके से तुम्हारे रिबेल के कारण, तुम्हारी आज्ञाकारिता के कारण तुम लोग उस स्लेवरी के अंदर पड़े, और फिर क्या है, परमेश्वर ने तुम्हारे लिए कार्यों को किया. उन दिनों को याद रखो जब परमेश्वर ने मूसा के द्वारा क्या किया, तुमको उस स्लेवरी में से बाहर निकाला, उस दासत्व की गुलामी से बाहर निकाला. उन दिनों को तुम याद रखो. और एक बहुत ही अच्छी लीडरशिप मोसेस को दी, और उस लीडरशिप के दौरान भी ओवरऑल जो काम कर रहा था वो कौन था, हमारा परमेश्वर, हमारा खुदा जो कि जीवता है. फिर उन 40 सालों को याद रखो, उन 40 वर्षों को याद रखो जब परमेश्वर ने तुम्हारी ही उस फेथलेस, उसको कह सकते हैं आप कि जिसमें बिल्कुल भी विश्वास नहीं था, उसको मुकम्मल करने के लिए तुम्हें विल्डरनेस के अंदर भेज दिया, और 40 वर्षों तक वो भटकते रहे, मगर तब भी परमेश्वर ने उनको नहीं छोड़ा. परमेश्वर ने निरंतर उनकी सुधों को रखा,
परमेश्वर ने उनके कपड़ों को फटने नहीं दिया, परमेश्वर ने उनके जूतों को घिसने नहीं दिया, परमेश्वर ने हर प्रकार से उनको तृप्त किया, परमेश्वर ने मन्ना को बरसाया, परमेश्वर ने स्वर्गीय भोजन से उनको तृप्त किया, परमेश्वर ने बहुत ऐसे ऐसे कार्य उनके जीवन में किया अजीजों, जो कि हमारे जीवन से परे है, हमारी समझ से परे है। परमेश्वर ने उनको मीठा जल उस रेगिस्तान के अंदर दिया। तो सोचिए, परमेश्वर क्या हमें हमारे इस हाल पर छोड़ देगा? नहीं, नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर हमारे साथ निरंतर बना हुआ है। फर्क इतना है कि हमें अपने ईमान को परमेश्वर के ऊपर रखना है। परमेश्वर यहाँ पर उन दिनों को याद करवा रहा है कि मैंने क्या तुम्हारे साथ को छोड़ा? नहीं छोड़ा। तुमने जब पुकारा तब तब मैं दौड़ा चला आया, तुमने जब जब मुझे पुकारा मैं आया। इवन तुमने मुझे कोसा भी, तुमने मुझे बुरा भला भी कहा, मगर मैंने तब भी तुम्हें नहीं छोड़ा, मैं तुम्हारे साथ बना रहा। मगर आए इजराइलियों, क्या तुम्हारा ईमान मेरे ऊपर है? इस चैप्टर में यही बात हो रही है। Remember the old days, the days of old. क्या परमेश्वर हमारे साथ है? क्या हम उन दिनों को याद करते हैं जब परमेश्वर ने हमारे लिए क्या क्या भलाइयों को किया? क्या क्या परमेश्वर ने हमारे साथ उन भलाइयों को हमारे जीवन के साथ अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा किया? फिर यहाँ पर हम देखते हैं the fall or disobedient nature of human being started from the garden until today. Jeremiah said the prophet referred to these days as the ancient past or good way. Jeremiah chapter 6 and verse 16. और यहाँ पर यर्मिया जो पुराने दिनों को याद करने से जोड़ रहा है, यर्मिया 6:16 के अंदर कि अच्छे दिनों के साथ उन चीजों को याद करो। देखो ये जो पुराने जो समय था कितना अच्छा था और कैसे कैसे भले कार्यों को वो किया करता था जो कि परमेश्वर की दृष्टि में ग्रहण योग्य है। आदम हवा ने फल को खाया अजीजों, अनाज्ञाकारिता की, क्योंकि हमारे स्वभाव में ही अनाज्ञाकारिता पाई जाती है, हमारे स्वभाव में ही पाप है। तो क्यों हम परमेश्वर को कोसे नहीं? परमेश्वर हर चीज का एक सोल्यूशन देने वाला है, रेमेडी देने वाला है, और परमेश्वर ने हर चीज को एक ज्ञानवान तरीके से हमको दिया ताकि हम उस ज्ञान को लेकर अपने जीवन में चलते चलें, और जिससे कि हम परमेश्वर की दृष्टि में तो ग्रहण योग्य ठहरे मगर समाज का भी हम भला करें। What do we need to remember the good path or way? It talks about the Jesus' way where he came to this world and he promised to be with us all. But we people in sufferings perhaps forgot his precious promise. Perhaps we closed our eyes to see God's goodness. Perhaps still we all are on disobedient way. But the old days we need to remember that God never breaks his promises with his people. हो सकता है कि हम उन यीशु मसीह की उन प्रतिज्ञाओं को भूल गए हैं इस सफरिंग्स के काल के अंदर, इस पीड़ाओं के दिनों के अंदर। हो सकता है हमने अपनी आंखों पर एक पट्टी को बांध दिया है, हो सकता है कि हम परमेश्वर की भलाइयों को नहीं देख पा रहे हो सकता है कि परमेश्वर की उन बातों को हम नहीं समझ पा रहे हो जो परमेश्वर हमसे रखता है। मगर यकीन मानिए कि जब यीशु इस संसार में आए, उन्होंने उन बातों को फुलफिल किया जो कि परमेश्वर की दृष्टि में ग्रहण योग्य थी, और परमेश्वर के आज्ञा के अंदर वो चलता रहा। स्वयं खुदा होकर जब वो इस चीज को फुलफिल कर सकता है, तो क्या उसने हमें नहीं सिखाया? क्या उसने हमें ये प्रॉमिस नहीं दिया कि आई एम विद यू ऑल, आई विल नेवर लीव यू एज ऑर्फनेज, मैं तुम्हें कभी भी अनाथ नहीं छोड़ूंगा बल्कि हमेशा तुम्हारे साथ बना रहूंगा। और इसके बावजूद भी परमेश्वर अपने उन प्रतिज्ञाओं को अपने लोगों के साथ कभी भी नहीं तोड़ता, और इसकी सबसे बड़ी प्रतिज्ञा ये है कि मेरा साथ तुम्हारे साथ निरंतर बना रहेगा। My relationship is like that with the human beings because I created you. मैंने तुम्हें बनाया है, मैंने तुम्हें सृजा है, मैं जानता हूँ तुम्हारा दुख
क्योंकि तुम्हारा दुख तुम्हारा नहीं, मेरा दुख है। हमने काम तो कर दिया, हमने इस वायरस को तो बना दिया है, मगर अब परमेश्वर हमारे जो हमने इस चीज को फैला दिया है उसको समेटेगा, उसको वापस से रिस्टोर करेगा, पुनर्स्थापित करेगा। जीजो, remember, Hebrew meaning is zakar, which means to recall a memory, found in Exodus chapter 13 verse 3, to consider Job chapter 7 verse 7, to recollect Psalms number 63 and verse 3, to think in the light of the future, Yeshaya chapter 47 and verse 7, and to remind. It appears 15 times in the book of Deuteronomy. We human beings have the tendency to forget the good events which God might have brought in our lives. और ये सही भी है अजीजों कि परमेश्वर जो कार्य हमारे जीवन में करता है और हम उन कार्यों को भूल जाते हैं, ये हमारा नेचर है। हम सारे जो परमेश्वर के अच्छे कार्य हैं उनको भूल जाते हैं, क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग्स हैं और ह्यूमन बीइंग्स होने के नाते हैं हम भूल जाते हैं। हम उन एहसानों को भूल जाते हैं जो परमेश्वर हमारे ऊपर करते हैं। हम उस दया को हम भूल जाते हैं जो परमेश्वर ने हमारे ऊपर किया। हम हर प्रकार से परमेश्वर के कार्यों को भूल जाते हैं। एक बहुत ही अच्छी कहावत है, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जब सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। है, इसका मतलब ये है कि दुख में तो हम परमेश्वर को याद करते हैं। अच्छा है कि हम अपने सुख में भी परमेश्वर को याद रखें, जिससे कि परमेश्वर हमें उस दुख को फेस करने का हमें वो दे, साहस दे। My friends, like Israelites, they forgot all the major events of God's work into their lives. When they were in the slavery for 430 years, wilderness for 40 years, with no land and no call their own, God sent Moses and other prophets throughout the ages to the Israelites to remember their detestable years of slavery in Egypt, from Exodus to Micah chapter 6 and verse 4. And God used foes to teach his people that he had made them walk the path of suffering in the wilderness, along with the guidance of God. Deuteronomy chapter 8 and verse 2 and chapter 9 and verse 7. Now all people belongs to God, and we all need to remember at our homes that how mighty deeds are done through in our lives. We might have gone through the sufferings, wilderness, etc., but that time God was faithful. He is faithful and He will be faithful with us, because He is the God of yesterday, today, and for future and forever. वो परमेश्वर जो हमारे साथ था, है और रहेगा, उसको हमें याद करना है। इजराइलियों को परमेश्वर इसलिए ट्रायल्स के अंदर ले गया क्योंकि उन्होंने अनाज्ञाकारिता करी। भले ही वो उस विल्डरनेस में रहे, मगर परमेश्वर ने टाइम टू टाइम अपने दासों के द्वारा, भविष्यवक्ताओं के द्वारा उनको बताया, रिमेंबर करो, ज़खार, टू रिकॉल, टू रिमाइंड। देखो उन दिनों को, मेमोराइज करो कि परमेश्वर की दया तुम पर कितनी थी। क्या आज परमेश्वर की दया हम पर नहीं है? एट द सेम वे, जब परमेश्वर को हम पुकारेंगे तब परमेश्वर हमारी दुआओं को सुनेगा। परमेश्वर की दया निरंतर हमारे साथ बनी रहती है। उसकी वाचाएं, उसका फेथफुलनेस, उसकी विश्वास योग्यता निरंतर अपने लोगों के साथ बनी हुई है। अजीजों, वचन जो ये वचन है, ये ऐसे ही नहीं लिख दिया गया, ये लिखा गया है क्योंकि जो लिखने वाले थे उन्होंने परमेश्वर के अनुग्रह को अनुभव किया अपने जीवन के अंदर, और पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर उन्होंने इस वचन को लिखा। इस वचन की बातें झूठी नहीं है अजीजों।
इस वचन की बातें मनमानी नहीं है। ये जो वचन है ये परमेश्वर की सामर्थ को रखता है और परमेश्वर की उस सामर्थ को ये अपने लोगों तक देता है। क्यों? जब हम अपने मन से परमेश्वर को निहारते हैं, परमेश्वर को हम मेडिटेट करते हैं। We all are one body of Christ. We suppose we also affect from this virus, but we need to remember that God is our faithful God. अगर कल्पना कीजिए कि अगर हम भी इस वायरस से अगर पीड़ित होते हैं या अफेक्टेड हो जाते हैं, मगर तब भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर इस वायरस से बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा परमेश्वर है हमारा। और परमेश्वर उस विल्डरनेस के अंदर भी हमारे साथ है। परमेश्वर उन लोगों के साथ भी है जो हॉस्पिटल्स के अंदर इस वायरस से पीड़ित हैं, परमेश्वर उनके साथ भी है। परमेश्वर उनकी भी देखभाल कर रहे हैं, परमेश्वर उनके साथ निरंतर हैं। बस फर्क इतना है कि हमें पहचानना है, हमें पट्टी को अपनी आंखों से खोलना है और देखना है कि परमेश्वर कितना महान परमेश्वर है। At our homes we need to remember our days of old where we worship God faithfully. We need to remember our neighbors. Everything we need to remember which encourages all of us to fight with this enemy in the wilderness with unity. बहुत सही बात है ये, बहुत सही बात है। हम सबको साथ में मिलकर एक यूनाइट तरीके से हमें चलना है अजीजों। ये गीत जो मूसा ने बहुत वर्षों पहले, हजारों सालों पहले जब इजराइलियों के लिए लिख दिया अपने पहले कमांडमेंट के अंदर, उसने कहा अपने पुराने दिनों को याद करो। हमें अपने पुराने दिनों को याद करने के बावजूद भी हमें अपने पड़ोसियों को भी ध्यान रखना है। That's why Jesus said, love your neighbors as yourself. This is the greatest commandment. अपने पड़ोसी की भी हमें सुध रखनी है। कौन है हमारा पड़ोसी? कौन है हमारा पड़ोसी अजीजों? क्या हमारा पड़ोसी वही है जो हमारे लिए अच्छा कर रहा है? नहीं, हमारा पड़ोसी वो है जो दुख में है और हमें यीशु मसीह के उस कार्य को पूरा करना है, जबकि उसे हमें दिया है कि अपने पड़ोसियों के देखभाल करो उनके संकट के अंदर। हमारे पड़ोसी वो हैं, हमारे पड़ोसी वो लोग हैं जो लोग भूखे हैं, जो लोग बेचारे जिनको खाना नहीं मिल रहा, वो हमारे पड़ोसी हैं। हमारे पड़ोसी वो हैं जो 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 अस्पतालों में पड़े हुए हैं, जो कि कर्रा रहे हैं, हमारे पड़ोसी वो हैं। हमारे पड़ोसी वो हैं जो कि दुख में हैं, वो हमारे पड़ोसी। और हमें परमेश्वर के प्यार को उन तक पहुंचाना है और हमें साथ में मिलकर लड़ना है इस दुश्मन से, इस एनिमी से, जो कि पूरे संसार के अंदर ये फैल चुका है। और जब तक हम साथ में मिलकर नहीं लड़ेंगे, और कैसे लड़ना है? प्रार्थनाओं के द्वारा, एक दूसरे पे विश्वास करने के द्वारा, एक दूसरे को प्यार से ट्रीट करने के द्वारा। This is the time at our homes to remember the old days is a call to discover God's fervent love, grace and guidance throughout times of suffering, affliction and trials. So we may come truly fathom His amazing salvation and mercies in Jesus' name. Really, I'm telling you, my friends, really, I'm telling you, we need to be united together because we all are the body of Christ. Yes, we all are the body of Christ because God created all of us in His own image. परमेश्वर ने हम सबको उसकी इमेज में बनाया है। जब हम अपने पुराने दिनों को याद करते हैं अजीजों, हम क्या याद कर रहे हैं? What are we remembering? हम क्या याद कर रहे हैं? खानों को हम याद कर रहे हैं अच्छे अच्छे, या हम अपनी ड्यूटीज के, जबकि हम अपनी ड्यूटीज से हम कमरे में बंद हैं, उन चीज़ों को याद कर रहे हैं?
हम क्या याद कर रहे हैं? किस चीज को परमेश्वर कह रहा है याद करने की हमें जरूरत है? किस चीज को हमें देखने की जरूरत है? हमें अपने हृदय को खोलने की जरूरत है अजीजों। जब हम यहाँ पर लेटे हुए हैं, अपने बिस्तर पर भी हम जब सो रहे हैं, तब भी हमें परमेश्वर को याद करना है। राजा दाऊद कहता है, मेरे बिछौने को देख, आंसुओं से गीला है। इसका मतलब क्या? हर समय वो राजा दाऊद परमेश्वर को याद किया करता था, उसकी महानताओं को याद किया करता था, उसकी दया को याद किया करता था। हो सकता है हम लालची हो सकता है हम बहुत स्वाभिमानी हो, ईगोस्टिक हो, मगर आज ये समय परमेश्वर ने हमें सिखाया है, इन सब चीजों को हमें अपने मनों से निकाल देना है, हमें दूर फेंक देना है और परमेश्वर की दया को जो यीशु मसीह के द्वारा संसार में प्रकट हुई, उसको याद करना है। Because Jesus came to this world to save sinners. क्योंकि यीशु संसार में पापियों को बचाने आया, आपको और मेरे को बचाने आया। इस चीजों को हमें याद करना है। परमेश्वर ने इजराइलियों को तो बचाया, परमेश्वर ने हमें भी बचाया। हमें इन चीजों को देखना है अजीजों। हमें हमारे पड़ोसियों को निरंतर याद करना है और उनके लिए प्रार्थनाओं को करना है, उनके लिए दुआओं को करना है, ताकि परमेश्वर की दया उन पर हो। आज इटली ने रिपेंट किया। क्यों किया? क्योंकि उन्होंने अपने पुराने बाप दादाओं के पापों को देखा। इस संसार में जब जब पाप बढ़ा है अजीजों, तब तब विनाश का कारण हुआ है और हम खुद उस विनाश को संसार में लेके आए हैं। परमेश्वर नहीं। परमेश्वर तो बचाने वाला परमेश्वर है, जीवन दान देने वाला परमेश्वर है, मौत देने वाला परमेश्वर नहीं। उसने तो उस पूरे संसार को जीवन दे दिया, जबकि हम सब उस अंधकार में जी रहे थे। यीशु मसीह के द्वारा उसने हमें बचा लिया, उस सलीब पर से उसने हमें चंगाई दी। बस वो ये चाहता है कि हमारा जो फेथ है, हमारा जो विश्वास है, वो परमेश्वर पर मुकम्मल हो, परमेश्वर पर निरंतर बना रहे। चाहे हम अपने कमरों के अंदर हो, चाहे हम अपने घरों के अंदर हो, हमें सबको याद करना है और उन बातों को याद करना है जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में रख छोड़ी है। और सबके लिए हमें दुआ करनी है, सबके लिए हमें प्रार्थना करनी है, सबके लिए हमें दुआएं प्रार्थना करना ज़रूरी है विश्वास के साथ। और एक दिन ऐसा होगा और बहुत जल्दी ये दिन आने वाला है कि जब कोरोना वायरस इतिहास बन के रह जाएगा और फिर से हम अपनी उस जर्नी को पूरा करेंगे। मगर हमें पुराने दिनों को नहीं भूलना, क्योंकि ये हमारे लिए एक सबक है परमेश्वर से रिवेल करने का, परमेश्वर को चैलेंज करने का। ये हमारे लिए एक सबक है अजीजों। इसको भी हमें याद करना है कि हम मिट्टी की संतान, मिट्टी से हम उत्पन्न हुए और मिट्टी में ही हमें मिल जाना है। परमेश्वर हमें हमेशा अपने हाथों में रखता है। परमेश्वर हमें हमेशा अपने सीने के अंदर बसाए रखता है। परमेश्वर इस गीत के दौरान, इस डिटोनॉमी चैप्टर 32 वर्स 1 to 7 के दौरान हम सबको आशीष दे। आइए हम दुआ मांगे। Thank you, dear gracious and Heavenly Father, for the wonderful time that, Lord, we learned lots of things about your virtues, about your faithfulness, about your love, about your graciousness, about your mercies. Lord, really, it's the time to rethink and recall and to remind ourselves, to introspect ourselves, Lord. It's the time that you have given us. Lord, be with us in the times of this trouble, in our wilderness that we are going and we are suffering from this time, from this disease. God, we especially pray for those who are, Lord, suffering from this diseases. Be with them and pour out your abundant healing upon them, O Lord. And Lord, touch them with your mighty, mighty hands, Lord. Because nothing is impossible with you. Everything is possible, Lord. Everything is possible. परमेश्वर, सब कुछ तेरे लिए संभव है। हमारे से कुछ भी नहीं हो सकता, हम तो इंसान हैं।
लॉर्ड अपना हाथ लोगों पर बढ़ाएं, उनको आप चंगाई दें। और आज का वचन खाली ना जाए, आज का वचन हमारे जीवन में 100 गुना फल लाए और आपकी इच्छा हमारे जीवन से पूरी हो। प्रभु, हम अपने पुराने दिनों को याद करते हैं, हम ये देखते हैं कि आपकी दया अब तक हम पर कितनी मुकम्मल रही, बनी रही और ये आगे तक बनी रहे। पिता, हमारे विश्वास को बढ़ाएं और हमें छुएं और हम में से हर जने को प्रोटेक्ट करें। धन्यवाद यीशु, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। इस प्रार्थना को आपके इकलौते बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर मुबारक नाम में होके मांगते हैं, जिसने हमें ये प्रार्थना करना सिखाया। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे पृथ्वी पूरी होती है, स्वर्ग में पूरी होती है, पृथ्वी में पूरी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम कसूर वालों को माफ करते, तो भी हमारे कसूरों को माफ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा हमेशा तेरे हैं। आमीन। God bless you all. May God bless you abundantly.